Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman bin Saif. The course code is HRM 755 and it's the performance management. This is session number 2. Let's first talk about what we have learned in the last session. In the last session, we started off with a brief introduction of me, and then we went on to the course objective. We discussed what is the course objective of performance management. Then I discussed the key learning outcomes. We went on to contents of the course structure, contents of the course or the course structure. Then we discussed the understanding performance management. What is performance management? Why do we do it? Then we discussed a case study of Sally. We actually, in the case study, we discussed what is not a performance management system. Then we discussed what is a performance management system. Then we discussed a case study of Merrill Lynch, and then another one of Siemens. Finally, we discussed what are the important contributions or the advantages of a performance management system. So this was about the previous session. Let's come to today's session. In this session, we'll start off with disadvantages or dangers of poorly implemented performance management systems. And then we'll discuss a case study. We'll move on to reward systems. What are reward systems? Why do we need them? Then types of returns, aims and roles of a performance management system, characteristics of an ideal performance management system. Finally, we'll finish off this chapter number 1 with the case study on our performance management system. So by the end of today's lecture, we'll be done with the chapter number 1 of the first section. So let's start with this lecture. Disadvantages, dangers of poorly implemented performance management system. The first disadvantage is increased turnover. If the process is not seen as fair, employees may become upset and leave the organization. Fair. Leave the organization. Increased turnover. What does that mean? हमने लास्ट सेशन में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और मुझे लगता है कि जो कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेजल है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक नहीं है. जो मेरा बॉस है, आई एम द मैनेजर, मेरे ऊपर जो डायरेक्टर है, ही इज़ नॉट कीपिंग अ गुड रिलेशनशिप विद मी. वो मुझे नहीं बताता मेरी परफॉर्मेंस कैसी, मुझे कोई फीडबैक नहीं देता, मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल ठीक नहीं हो रही, ऑल्दो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सही तरह से रिवॉर्ड नहीं दे रही कंपनी. व्हाट विल आई डू? आई विल फाइंड अनदर जॉब, आई विल स्विच, आई विल मूव ऑन टू अनदर कंपनी. This is what an increased turnover is. Another disadvantage is use of misleading information. If a standard system is not in place, there are multiple opportunities for fabricating information about an employee performance. The director, I'm working in a company, I'm the manager, and the director above me, we have a very cordial, good, or I can say informal relationship.
We go for tennis as well. In every evening we go and play tennis as well. When we come to the office, we keep on, meeting each other. But on the other hand, my performance at the company is not good. I do not work very hard. Many of the time I have to ask my director to extend the deadlines. I do not meet the deadlines. I do not do my work on time, and I'm lazy. But still, I am maintaining a relationship with my boss, with the director, and the director is the one who is going to report about my performance. So and on the other hand, not only the relationship, I take the director and his family occasionally on dinners. I send them gifts. So the director is obliged, and when the director is going to write my performance appraisal, he'll ignore all my shortcomings. So when the performance management system is not properly implemented, what happens then? Then people like me gets through. मैं काम अच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी परफॉर्मेंस, बॉस मेरा क्योंकि बहुत खुश है मेरे से, परफॉर्मेंस मेरी ठीक कर देता है, भेज देता है, अप्रेजल ठीक कर देता है, हर साल बोनस भी मुझे मिल जाता है, प्रमोशन भी मिल रही है, एंड ऑल दैट. So this is one disadvantage of a poor performance management system or a poorly implemented performance management system. Another is lower self-esteem. Self-esteem may be lowered if feedback is provided in an inappropriate and an inaccurate way. अब हो ये रहा है कंपनी में कि मैं काम तो बहुत ज़्यादा करता हूँ. Let's forget the previous scenario, बॉस वाला. अब मैं मैनेजर हूँ, डायरेक्टर है मेरा, और डायरेक्टर जो है मुझे मेरी फीडबैक ठीक तरीके से नहीं देता. मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम टाइम पे करता हूँ, सब कुछ, लेकिन मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता. हर दफ़ा मैं काम करके लेके जाता हूँ, कोई ना कोई बीच में से नुक्ता निकाल देगा, कोई और मेरी लेग पुलिंग करेगा, मुझे he does not treat me with respect. मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लूँ, अच्छा काम भी करके जाऊँ तो भी मुझे कोई तारीफ़ नहीं करेगा, कभी अच्छा नहीं कहेगा, और मेरे किसी काम पे फीडबैक मुझे मिलते ही नहीं प्रॉपर. तो मेरी तो इज़्ज़त नफ्स जो है वो तो I'll feel bad. Wasted time and money. Performance management system cost money and quite a bit of time. अगर प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, या पुअर है, या उसके अपने मॉड्यूल सारे या कंपोनेंट्स नहीं इम्प्लीमेंट किए हुए, तो क्या होगा? क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके लिए टाइम दरकार है. अब बीइंग द मैनेजर, मेरे जितने जूनियर मैनेजर हैं उन सबकी मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, मैंने सोचना है, मुझे टाइम चाहिए, कॉस्ट लगती है उसके ऊपर. अगर सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो मेरे उस टाइम कॉस्ट तो हर चीज़ वेस्ट ही हो रही है ना. जैसे हमने लास्ट सेशन में एक केस एग्जांपल डिस्कस की थी सैली की. अब सैली को लगता था कि अपने एम्प्लॉयज़ की उसने परफॉर्मेंस चेक करनी है, अप्रेजल लिखना है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. उसने क्या किया, 10 एम्प्लॉयज़ थे, 20 मिनट के अंदर फॉर्म फिल किया. उसने कहा सब का लिख दिया, उसने कहा जी सारे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा काम करते हैं, जान छुड़ाई उसने. सो इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. Damaged relationships. As a consequence of a deficient system, the relationship among the individuals involved may be damaged, often permanently. अब अगर बॉस मुझे मेरी तारीफ़ नहीं करता, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, फीडबैक ठीक नहीं देता, मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन फीडबैक नहीं ठीक देता, तो क्या है, मुझे बताता भी नहीं मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ, क्या करूँ. तो what it is, it's a poorly implemented performance management system. सो मेरा और बॉस का जो है ताल्लुक, रिलेशनशिप तो ख़राब हो गया वहाँ पे. मैं ऐसे बुरा भला ही कहूँगा, मैं कहूँगा यार बहुत गंदा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, वो ये ऐसा है, उसने ये ऐसा किया.
सो हमारा परमानेंटली या टेम्परेरली रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया। देन डिक्रीज्ड मोटिवेशन टू परफॉर्म, हमने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने जब एडवांटेजेस देखे थे तब हमने डिस्कस किया था कि मोटिवेशन टू परफॉर्म, अगर जिस तरह हमने उस वक्त हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि आई एम अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड मेरा बॉस जो है मेरे ऊपर है, मेरे क्लस्टर हेड हैं, क्लस्टर हेड के ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी इस सेमेस्टर की जो अप्रेजल है वो बहुत अच्छा है, तुमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों को बहुत डेडिकेशन से मेहनत से पढ़ाया, तुम्हारा टीचिंग strategy methodology is very good, it's very different, students like you, other faculty members आपकी तारीफ़ करते हैं, I am very happy with your work। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम, आप ना थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं कि कंसंट्रेट करें रिसर्च में भी, आपने इस सेमेस्टर में कोई रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश नहीं किए तो आपको चाहिए कि और रिसर्च पे ज़रा फोकस करें, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे डिस्कस कर लें, हम बैठ के कोई टॉपिक्स देख लेते हैं और हम इकट्ठे बैठ के भी रिसर्च कर सकते हैं, मिल के भी रिसर्च हो सकती है और ये वो हो सकता। थ्रू द फीडबैक व्हाट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैज डन, ही हैज गिवन मी द मोटिवेशन टू परफॉर्म। अब उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं रिसर्च में भी परफॉर्म करूं, बाकी तो मेरी परफॉर्मेंस ठीक है, ये भी मुझे, और मैं नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं और मेहनत करूंगा, रिसर्च को भी साथ लेके चलूंगा। नाउ इफ यू topple, put it upside in the case of disadvantage, the same story, what is happening, अब मुझे फीडबैक नहीं मिल रही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे नहीं, उसने कहा कि जी बस ठीक है आपकी परफॉर्मेंस, उसने मुझे दी ही नहीं फीडबैक, या उसने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी रिसर्च में तुम इम्प्रूव करो या कुछ करो। तो जब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं अच्छी, क्या कर रहा हूँ मैं, अजीब डिल्यूशनल सी स्टेट है कि पता नहीं मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा है। कभी एचओडी ने मुझे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया नहीं, या डायरेक्टर कैंपस ने या क्लस्टर हेड ने कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी, मैं पूछता भी हूँ तो ऐसे ही गोलमोल कर देते हैं, तो मेरी मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा। मैं सोचूंगा कि यार जब अगर ये मुझे मेरी फीडबैक नहीं देते, मुझे बताया नहीं रहे मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरी परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करती। जब मेरी परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करती तो व्हाई शुड आई वर्क हार्ड, व्हाई शुड आई पुट माई सेल्फ इन हॉट वाटर्स, मैं सारा दिन इतनी मेहनत करूँ, रगड़ा खाऊँ, और जब या तो मुझे मैटर करती होती तो मुझे बात कहते कि भाई ये तुम्हारी फीडबैक है ठीक नहीं है या ठीक है। जब कोई मुझे कुछ कहता ही नहीं तो लेट इट बी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। तो वो व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरी मोटिवेशन वहाँ ख़त्म हो गई, डिक्रीज़ हो गई, मैं और मेहनत नहीं करूँगा। एम्प्लॉय बर्नआउट एंड जॉब डिससैटिस्फैक्शन, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एम्प्लॉय बर्नआउट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डेली मुझे काम दे रहे हैं, यार ये एक आर्टिकल लिख के लाओ, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, फलानी फाइल आ रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, क्लास में भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, कोर्स वर्क भी डेवलप करना है, उनके क्विज़ेस, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें लेनी है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि आई एम वेरी डिसओरिएंटेड, मुझे समझ नहीं आ रही, इतना ज़्यादा मेरे पे बर्डन है, मैं बर्न आउट हो रहा हूँ, काम इतना नहीं मैं कर सकता जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, मैं घर टाइम पे नहीं पहुँचता, और मेरी गाड़ी की फलानी चीज़ टूटी हुई है, इट्स बिन मंथ्स, गाड़ी के कार का दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ है, मैं नहीं ठीक करा सकता, हमेशा मुझे लेफ़्ट साइड से गाड़ी का दरवाज़ा खोलना पड़ता है क्योंकि राइट वाला हैंडल टूटा हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटी में जान ही नहीं छोड़ रही, मैं क्या करूं। फिर मुझे फीडबैक भी नहीं मिल रही, कुछ समझ भी नहीं आ रही, तो मेरी डिससेटिस्फैक्शन लेवल इतना हाई हो जाएगा, इवेंचुअली आई विल से कि ठीक है, फेयर एनफ, आई डोंट वर्क फॉर दिस यूनिवर्सिटी, मैं इस कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता, या ऑलरेडी मैं बर्न आउट हो जाऊँगा। एंड एक दिन वन फाइन डे व्हाट आई विल डू कि आई विल से कि मैं बस नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट, आई एम डन।
So what is employee burnout and job dissatisfaction? When the performance assessment system is not seen as a valid and the system is not perceived as fair, employees are likely to feel increased level of job burnout and dissatisfaction. System है नहीं, feedback मिलती नहीं, performance ठीक होती नहीं. Let it be. यार मैं छोड़ के चला जाऊंगा, dissatisfied तो वैसे ही हूँ. Increased risk of litigation. Expensive lawsuits may be filed by individuals who feel that they have been appraised unfairly. Let me give you an example. It's a real example. In one of the universities in Islamabad, this has happened about a year or 2 years back. What happened was that the head of the department was changed just before the end of the semester. और हर semester के बाद employees की I've heard this story, the exact story. So this has actually happened. This is a real case. और वहाँ पे क्या हुआ कि semester ख़त्म होने से जस्ट पहले एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेंज हो गए, पिछले हेड ऑफ डिपार्टमेंट चले गए, एक नए आ गए. जो नए आए वो कुछ उनका शुरू में ही इन द फर्स्ट वीक कुछ 6-7 एम्प्लॉयज़ के साथ उनका कोई इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ और उनको ही डिड नॉट लाइक देम. अब क्या हुआ कि उन्होंने आते ही अब बाकी हर सेमेस्टर के बाद अप्रेजल रिपोर्ट लिखनी थी अपने जितने उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं. उन्होंने उन जो 6-7 लोग जो उनको पसंद नहीं आई, जिनसे उनकी 1-2 बातों पे बहस हो गई मीटिंग में और उनको पसंद नहीं आया और सम सॉर्ट ऑफ, उन 7 लोगों की उन्होंने अप्रेजल ठीक नहीं लिखा, उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं लिखी. उसमें उन्होंने उनकी रिपोर्ट में लिखा कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं और ये वो बला बला. और क्या हुआ कि अब उसकी बेसिस पे, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अब वो रिपोर्ट लिख के उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस को भेज दी, HR ऑफिस को. HR ऑफिस ने जब वो अप्रेजल्स देखे तो उन्होंने उन 7 लोगों को वार्निंग लेटर्स इशू किए. अब वार्निंग लेटर्स इशू हुए तो लोगों को तो दे वर वेरी एंग्री बिकॉज दे हैड बीन वर्किंग हार्ड, दे वर वेरी गुड फैकल्टी मेंबर्स. Their appraisal had been very good in the past, and suddenly they were not treated well, and they were served with a warning letter. So one of the faculty members went to the court, and then the others followed suit. उस 7 पहले एक कोर्ट में जाके उन्होंने केस फाइल कर दिया, एक रिट फाइल कर दी. बाकी के 6 ने जब देखा कि वन ऑफ देम हैज़ वेंट टू द कोर्ट, 6 के बाकी 6 भी कोर्ट पहुंच गए. 7 लोगों ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉल्ड अप दैट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी वालों को भी बुलाया, उन्होंने उन एम्प्लॉयज़ को बुलाया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया और इवेंचुअली द यूनिवर्सिटी लॉस्ट द केस. अब केस एक तो लूज़ कर गई और कोर्ट ने गारंटी किया कि यूनिवर्सिटी कैन नॉट टेक एनी एडवर्स एक्शन अगेंस्ट दोस एम्प्लॉयज. वन थिंग. अदर थिंग, यूनिवर्सिटी हैड टू पे compensation and damages in terms of additional salaries, and उन सबको उन्होंने 5 या 4 सैलरीज उनको एडिशनल देनी पड़ी उन एम्प्लॉयज़ को जिन एम्प्लॉयज़ को वार्निंग लेटर्स इशू हुए थे. कोर्ट ने ऑर्डर किया और उनको देनी पड़ी और इस तरह से. सो वो जो उन्होंने अब 7 लोग थे, 7 लोगों को 5 सैलरीज, 5 सैलरीज का मतलब है इट कम्स टू ह्यूज अमाउंट, सम 2-3 मिलियन रुपीज़. और वो जो 3 मिलियन रुपीज़ यूनिवर्सिटी को उन 7 फैकल्टी मेंबर्स को देने पड़े, that was a big loss for the university because university के तो अर्निंग में से वो उतने लॉस हो गया उस साल. और बिकॉज ऑफ दैट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अगर वो
this has happened. So major flaw, where was the major flaw? The major flaw was that the performance management system was not in place. It had not been implemented properly. Human Resource Office ने तो performance appraisals कराई, लेकिन वो performance appraisals क्या थी? ठीक नहीं थी. उनकी फीडबैक नहीं कोई प्रोवाइड की गई, उन फैकल्टी मेंबर्स से कोई बात नहीं की गई और उन्हें वार्निंग लेटर्स इशू कर दिए और वार्निंग लेटर्स की वजह से लिटिगेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी यूनिवर्सिटी को. Another disadvantage is unjustified demands on managers and employee resources. Poorly implemented systems do not provide the benefit provided by well implemented systems. Yet they still take up managers and employees' time. अब क्या है? Poorly implemented system do not provide the benefits provided by a well implemented system. अब poorly, जब मैं कहता हूँ poorly implemented और well implemented, what is the difference? Poorly implemented system होता है कि जी मैंने performance appraisal भी कराने शुरू कर दी यूनिवर्सिटी में और मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने यूनिवर्सिटी में या फॉर दैट मैटर किसी कंपनी में, मैं अपनी मेरी कंपनी है उसमें मैं कहता हूँ कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने इन प्लेस कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट तो मैंने कर दी है, मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करा रहा हूँ, मैनेजर्स को कह रहा हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ की जितने सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस लिखें, रिपोर्टें लिखें, ये लिखें वो लिखें, लेकिन मैं एम्प्लॉयज़ को फीडबैक भी नहीं दी जा रही, उनके जो गोल्स भी डेवलप नहीं किए जा रहे, उनको गोल्स उनके बताए भी नहीं जा रहे, उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और उन्होंने साल में क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी नहीं हो रही. सो दिस इज़ अ पुअर सिस्टम. जब ये चीज़ें नहीं हो रही और सिर्फ अप्रेजल्स हो रहे हैं, रिपोर्टें लिखी जा रही हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो दे आर कंज्यूमिंग टाइम, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा. Varying and unfair standards rating. Both standards and individual ratings may vary across and within units and also be unfair. Different standards, किसी फैकल्टी मेंबर के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए कुछ और स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, किसी के लिए कुछ और फॉलो हो रहा है, क्योंकि एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड या डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी तो है नहीं. Emerging biases, personal values, biases, relationships are likely to replace organizational standards. अब ऑर्गेनाइजेशन ने तो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि जी जिसकी परफॉर्मेंस इस साल 90% एंड अबव होगी उसको हमने बोनस देना है, जिसकी परफॉर्मेंस 93% अबव होगी उसको प्रमोशन देनी है. लेकिन अब ये 90%, 93% रेटिंग किसने करनी है? मैनेजर ने. मैनेजर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? अगर आपका सिर्फ इस पर डिपेंड करे मैनेजर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ, 93% आपको रेटिंग देता, आप प्रमोट हो जाता. अनक्लियर रेटिंग सिस्टम का भी नहीं पता कि रेटिंग किस चीज़ पे होती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रैंकिंग होती है. सो दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ और डेंजर्स ऑफ पुअरली इम्प्लीमेंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. लेट्स नाउ डिस्कस अ केस स्टडी. What happens when performance management is implemented poorly? One example of a poorly implemented performance management system resulted in a $1.2 million lawsuit. क्या होता है जी? A female employee was promoted several times and succeeded in construction industry until she started working under the supervision of a new manager. एक फीमेल एम्प्लॉय थी, कई बहुत सालों से एक कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करी, कई दफ़ा उसकी प्रमोशन भी हुई, उसको सैलरी रेज भी मिला, अनटिल एक नया मैनेजर आ जाता है जो क्या करता है. शी स्टेटेड इन हर लॉ सूट दैट वंस शी वॉज प्रमोटेड एंड रिपोर्टेड टू द न्यू मैनेजर दैट द बॉस इग्नोर्ड हर एंड डिड नॉट गिव हर द सेम सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग दैट हर मेल कोलीग्स रिसीव्ड. वो क्या करता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, फीमेल कोलीग को इग्नोर करता है, उसको ना फीडबैक देता है, ना कोचिंग देता है, ना उसको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो मेल कोलीग्स को अवेलेबल है, मेल कोलीग्स को दी जा रही हैं. आफ्टर 8 months ऑफ रिसीविंग नो फीडबैक फ्रॉम हर मैनेजर, 8 महीने गुजर गए, उसको ना कोई फीडबैक दी गई ना कुछ और. शी वॉज कॉल्ड इन टू हिज ऑफिस. उसको फिर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि जी शी इज़ फेलिंग रिजल्टिंग इन अ डिमोशन
कि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसे डिमोट किया जाता है और $20,000 उसकी एनुअल सैलरी में से कम कर दी जाती है, उसकी जो सैलरी है उसमें से कम हो जाती, कर दिए जाते हैं. When she won her sex discrimination lawsuit or the gender discrimination lawsuit, a jury awarded her $1.2 million in emotional distress and economic damages. अब क्या होता है कि वो कोर्ट में चली जाती है, केस फाइल कर देती है, केस सूट फाइल कर देती है, कोर्ट फैसला देती है और कोर्ट उसे कंपनसेशन में $1.2 मिलियन देती है, जो कि कंपनी को पे करने पड़ रहे हैं. कंपनी को तो $1.2 मिलियन का नुकसान हो गया. और किस चीज पे नुकसान हुआ कि उसकी 20,000 सैलरी कम करने पे, उसे डिमोट करने पे, फीडबैक ना देने पे $1.2 मिलियन का कंपनी को नुकसान हुआ. सो दिस इज व्हाई performance management systems are so important and the proper implementation of them is very important. Companies can have the performance management system, but if they are not functioning properly, they are not in place properly, then they can prove dangerous to the companies as well. Reward system. What is a reward system? An employee's compensation, usually referred to as tangible returns. Is this a reward system? Reward कहते किसे? कॉमन सेंस में हम बेसिक टर्म्स में देखें, मैं रिवॉर्ड कैसे देता हूँ? I'm a manager at a company और मैं, आप अच्छा काम करते हैं तो मैं आपको शाबाश देता हूँ, मैं कहता हूँ जी, आपको बताता हूँ, आपको फीडबैक देता हूँ कि यार यू हैव डन वेरी वेल. और लेट्स डू अ रोल प्ले. क्या होता है कि and I give you a real example, and when I had been working for the government of Pakistan, so I was working for the trade policy wing. वहाँ पे basically I was doing as a senior researcher. My job was to develop policies, policy notes, trade policies, or and I was also supervising researchers. अब वहाँ पे क्या होता था कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई मिनिस्ट्री की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से काम आ रहा होता था. सपोज़ अगर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने एक हमें लेटर भेजा है कि जी हमें कल सुबह तक, आप दोपहर के वक्त हमारे पास आया काम कि जी कल सुबह तक पाकिस्तान की जो टोटल राइस एक्सपोर्ट्स है उसका एनालिसिस करके दें, रीजन वाइज बताएं कि जी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ राइस या जो चावल है, चावल की फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है, क्या क्या किस क्वांटिटी में होती है, पाकिस्तान कितनी राइस की कंजम्पशन पाकिस्तान की क्या है, और कितनी राइस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, किस किस क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता है. अब ये सारा एक रिसर्च करनी है, डाटा एनालिसिस करना, रिकमेंडेशन डेवलप करके हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस सुबह 10 बजे तक भेजनी है, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं उनको बताना है कि जी दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ राइस इन पाकिस्तान, और हम इसको इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया के अंदर, हम जिनको स्टडी करके बता सकते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें तो हमारी पाकिस्तान की राइस की जो फसल है वो इम्प्रूव हो सकती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है. आई हैड अ टीम देयर, और हमने ये किया कि मैंने अपनी टीम को बुलाया और उससे बताया कि जी दिस इज़ द वर्क दैट वी हैव बीन गिवन, और हमने आवर डेडलाइन इज़ एट 9 इन द इवनिंग, रात को 9 बजे तक. हमने इस वक्त दोपहर के 3 बजे, हमने रात को, हमारे पास इस वक्त 6 घंटे हैं, 6 घंटे में हमने रिसर्च करके, फर्स्ट डेडलाइन इज़ 9 o'clock, सेकेंड डेडलाइन इज़ 11 o'clock. आज मेरी टीम के अंदर देवर अबाउट 8 पीपल, तो हम आज घर नहीं जाएंगे, हम रात को काम कंप्लीट करके घर जाएंगे, जितनी भी हमें वो हो जाए, डेट हो जाए हमें काम, क्योंकि सुबह 10 बजे तक देना है.
अब 9 बजे तक मैंने सारे काम को डिवाइड कर दिया अपने टीम के अंदर के, सबको दे दिया, अलग अलग हेड्स दे दिया, आपने इस पे काम करना है, आपने ये पॉलिसी निकालनी है, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढनी है। अब क्या हुआ कि रात को 9 बजे तक बैठ के हमने उसे सारा दिया, फिर 9 बजे के बाद उसे कंपाइल, फर्स्ट डेडलाइन पे सारे लोग काम करके लेके आए, फिर उसको कंपाइल करना शुरू किया। 11, 12, 1 बज के 1 बजे तक हमने प्रूफ रीडिंग करके उसकी प्रिंटिंग करके रिपोर्ट की हमने तैयार कर ली। नाउ अब रात को 1 बजे मैंने अपनी टीम को छुट्टी दी, एंड इन द मीन टाइम उनको शाम को चाय, उनका रात का डिनर, उनको सबको मैंने वहीं पे कराया, उनको बैठाया, सो दैट बिकॉज दे आर वर्किंग। अब हाउ डिड आई रिवॉर्डेड देम, मैंने क्या किया कि अब रात को उन्हें मैंने बताया कि बिकॉज यू हैव वर्कड एक्स्ट्रा, एंड वन थिंग इज़ के आपको ये जितने आवर्स आपने इवनिंग में एक्स्ट्रा काम किया है, इतने आवर्स की आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। द अदर थिंग, टेक टुमारो ऑफ, टेक टुमारो ऑफ। आप लोग कल बेशक मत आएँ, आई विल कम इन द मॉर्निंग, मैं आके सुबह इस रिपोर्ट को एक दफ़ा जो है प्रिंटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, इसको सिर्फ अब लेटर हेड लगा के इसको हमने भेजना है, तो मैं बाय 9 o'clock में इसे सेंड कर दूंगा। और बिकॉज यू हैव वर्कड एक्स्ट्रा, तो मैंने उन्हें रिवॉर्ड दिया इस तरीके से कि वो कल की छुट्टी कर लें, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा वर्क किया, आप कल की छुट्टी कर लें और आपको एक इवनिंग की आपको हम एज एडिशनल सैलरी भी मिल जाएगी। सो दीज आर सिंपल little rewards manager can give or any other person can give to his subordinates। और छोटे और कोई रिवॉर्ड ये हो सकते हैं कि जी मैं अपने टीम को कहूँ कि अच्छा मैं आप लोगों को फ़लानी जगह डिनर करा देता हूँ, फ़लानी जगह लंच करा देता हूँ, आप काम कर दें, ये कर दें, वो कर दें। उसका फ़ायदा ये है कि मेरी टीम मोटिवेटेड रहती है, मेरा रिलेशनशिप उनसे अच्छा रहेगा, मैं उनसे अच्छा काम करा सकूँगा। सो दैट इज़ वाई रिवॉर्ड सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very very important। अब how do we define it? An employee's compensation which can be tangible returns। intangible returns हो सकते हैं कि अपनी टीम को मैंने बुला के बहुत शाबाश दी कि जी you have done a very good job in a very short time and I'm very impressed, and what I'll do, I'll write it to my boss and then tell them कि these employees, these team workers have done very well on this report। tangible क्या होगी कि जी इनको एक इवनिंग की सैलरी एडिशनल दी जाए, कल की छुट्टी दी जाए। कैश कंपनसेशन क्या हो सकती है जी, एक तो बेसिक पे यूजुअली होता है कि जी हम देखते हैं कि बजट अनाउंस होता है या और कोई ओकेजन के ऊपर, या हम अक्सर सुनते हैं कि जी 23 मार्च पे आर्मी को या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। 28 मई 1998, 28 मई को क्या हुआ था, पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया था। जितने लोग उस में इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 बेसिक सैलरीज या 3 बेसिक सैलरीज उनको एज अ गिफ्ट दी थी उनको, कि उन्होंने दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब फॉर द नेशन। सो दिस इज हाउ कैश कंपनसेशन कैन बी गिवन इन अ रिवॉर्ड सिस्टम। और इसमें क्या जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मेरिट पे है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स। अब हम इनको ज़रा डिटेल में देखते हैं। और अदर बेनिफिट्स क्या हैं, इनकम प्रोटेक्शन, वर्क लाइफ फोकस, ट्यूशन रिइंबर्समेंट एंड अलाउंसेस। इनकम प्रोटेक्शन क्या है, वर्क लाइफ फोकस, ट्यूशन रिइंबर्समेंट, अलाउंसेस, प्लस अभी हमने बात की बेसिक, कॉस्ट ऑफ लिविंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स। ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। However, employees also receive intangible returns, also referred to as relational returns। relational returns क्या, मैंने अभी जैसे डिस्क्राइब किया, intangible के शाबाशी दी, मैंने कहा कि जी फलाना एम्प्लॉय, मैंने किसी और के अपने डायरेक्टर जनरल के सामने जाके मैंने तारीफ़ की कि जी he has done a very good job, ये बहुत अच्छा है, बड़ा लाइक
जो है एम्प्लॉय है बड़ा अच्छी तरीके से काम करता है, बड़ा प्रोफेशनली काम करता है, और कहीं जाके मैं कहे बताता हूँ कि जी फलानी फैकल्टी मेंबर्स हैं, आई गो टू अनदर यूनिवर्सिटी एंड टेल देम कि जी मार्केटिंग, ही इज़ द वन हु इज़ वेरी गुड, ही इज़ अमेजिंगली गुड इन मार्केटिंग। अगर आपने मार्केटिंग का कोई कोर्स आपने विजिटिंग फैकल्टी में पढ़वाना है, तो आपको कोई बहुत अच्छा मार्केटियर चाहिए, तो दिस इज़ द वन। सो दीज आर ऑल इनटेंजिबल रिटर्न्स, एंड दे इंक्लूड इंटेंजिबल रिटर्न्स में क्या क्या चीज़ें, रिकॉग्निशन है, स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, चैलेंजिंग वर्क, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल में आ जाती हैं। Definition of reward system. A reward system is that the set of mechanism for distributing both tangible and intangible returns as part of an employment relationship. हमने डिफाइन किया, अभी देखा टेंजिबल रिटर्न कौन से होते हैं, इंटेंजिबल कौन से होते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या होता है, आपने मुझे नौकरी दी, मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप मेरा डेवलप स्टार्ट हो गया, जब तक मैं उस नौकरी को करता रहूँगा मेरा आपका रिलेशनशिप उस नौकरी के हवाले से रहेगा। और सेट ऑफ मैकेनिज्म है, सेट ऑफ मैकेनिज्म जिसमें क्या है, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों टूल्स हैं, किसको चलाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को चलाने के लिए। इट शुड बी नोटेड दैट नॉट ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। दिस इज द केस बिकॉज not all types of returns are allocated based on performance. For example, some allocations are based on seniority as opposed to performance. अच्छा, रिवॉर्ड सिस्टम जो होता है, रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि इन प्लेस है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रिवॉर्ड मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल भी हमने देखी है कि जी सीनियरिटी बेसिस के ऊपर भी आपकी पे इंक्रीज होती है। हर साल कंपनी ने की पॉलिसी है कि जी 5% सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं और सैलरी बढ़ती जाती है। सो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस ना भी अच्छी हो, एवरेज भी परफॉर्मेंस होगी तो भी वो 5% तो सैलरी बढ़नी है आपकी। नाउ टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किए, बेस पे या बेसिक पे, व्हाट इज दैट? It is given to employees in exchange for work performed. ये क्या होती है कि अब मैंने आपकी कंपनी में जॉब करनी है तो मैं आता हूँ, आप मुझे बताते हैं कि जी आप मेरा इंटरव्यू करते हैं, आप मुझे कहते हैं कि जी ये काम है या ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये काम आपने करने होंगे। तो मैं कहता हूँ जी इन कामों के लिए तो माई एक्सपेक्टेशन इज़ 150,000। आप कहते हैं कि एंड आवर ऑफर इज़ 125,000। अगर मुझे वो 125 सूट करता है तो आई विल जॉइन द कंपनी। वंस आई हैव जॉइंड द कंपनी, आपने 125,000 पे मुझे हायर कर लिया, लेकिन वो 125,000 जो है आई विल आस्क यू कि जी इज इट द बेसिक और द लंप सम। अब क्योंकि सैलरी में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सैलरी, जब व्हेन आई से सैलरी, एक तो मेरी बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी तो आपने जो मुझे जॉब दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी वो मैंने पूरी करनी है उस बेसिक सैलरी में। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम आपको इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स ये देंगे कि आपको हाउस रेंट आपका दे दिया करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी देगी, मोबाइल फ़ोन का बिल आप देगी, आपको कार का अलाउंस दे देंगे या कार आपको फाइनेंस कर देंगे। ये सारे क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं। तो बेसिक जो काम के लिए मुझे तनख्वाह मिलनी है, काम के लिए मुझे जो पैसे मिलने हैं वो मेरी बेसिक सैलरी। The base pay, which usually includes a range of values, focuses on the position and duties performed rather than an individual's contribution. Cost of living adjustment and contingent pay. COLA, C-O-L-A, cost of living adjustment. Employ the same percentage increase for all employees regardless of the individual performance. Cost of living adjustment. Why do we say adjustment? अभी मैंने बात की हाउस रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है सारी। तो
अगर कंपनी ये चीज़ें दे रही है तो फिर लिविंग एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है? फिर कंपनी तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से कोई वो नहीं देती कि जी हम आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग दे रहे हैं। कंपनी आपको कहती है कि अच्छा ठीक है, आपको बेसिकली तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही है, लेकिन आपको हम टेलीफोन कंपनी देगी, आपको कार कंपनी देगी, उसके बाद आपका हाउस रेंट दे देगी। ठीक है, हाउस रेंट आपको इतना अलाउड है, इतने में आप जो मर्जी घर ले लें, या कंपनी आपको घर दे देती है, कहती है हम रेंट नहीं देते, आप घर ले लें, कंपनी के घर हैं, आप घर में आ जाएं। लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ें हर साल इंक्रीज़ हो रही हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस हर साल हर बजट में बढ़ जाती है, हर कुछ महीनों बाद बढ़ जाती है, फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ जाती है, आपका जो है पेट्रोल है वो महंगा से महंगा होता जा रहा है, ट्रैवलिंग महंगी होती जा रही है, हाउस रेंट हर साल बढ़े जा रहा है। पिछले साल जो मैंने जिस घर में मैं रह रहा हूँ, पिछले साल मैंने उस घर का जो रेंट दिया था 30,000 है। इस साल मैंने इन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया तो उन्होंने कहा जी लेस देन 35 अगर आपने रहना है तो रहें, लेस देन 35 में आपको घर नहीं देंगे। तो 5,000 रुपये मेरा रेंट बढ़ गया। अब 5,000 जो रेंट मेरा बढ़ गया है वो तो मेरी सैलरी में से जा रहा है ना, मेरी जो टोटल लमसम सैलरी है उसमें से 5,000 तो मेरे और कटना ख़त्म हो गए। कंपनी ने मुझे कहा था कि जी जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उन्होंने मुझे कहा था कि जी 30,000 तक का आप घर ले लें, मैंने 30,000 तक के रेंट का घर ले लिया। अब 5,000 रुपये क्या हुआ कि और मुझे फिर जेब से देने पड़ रहे हैं। फिर क्या अब होता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कंपनीज़ क्या करती हैं, हर साल अपने क्लोज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने बजट में क्या करते हैं कि लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट्स आपको देती। अब कंपनी क्या कर रही है कि उसका एक साल का फाइनेंशियल ईयर जैसे ख़त्म हुआ, अगले साल एक तो मेरी 2% या 3% मेरी बेसिक सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट देगी। कंपनी कैलकुलेट कर लेती है कि भाई इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, आपके खाने पीने की अशिया की इतनी चीज़ें बढ़ गई, दूध इतना था अब इतना महंगा हो गया, आपके पेट्रोल पिछले साल 96 पे था अब 108 रुपये हो गया। इसी तरह वेरियस और आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, हाउस रेंट्स 5% 2% बढ़ गए। तो कंपनी क्या करती है, मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट मेरी सैलरी में एडजस्टमेंट डाल देती है एक कि ठीक है अगर 125 मेरी सैलरी थी तो अब मेरी सैलरी में 10,000 या 15,000 का एडजस्टमेंट डाल देती है, तो 135 कर देती है। प्लस ये कि मेरी जो अदर्स अलाउंसेस बढ़ रहे हैं 135 कर देती है, सो दैट मैं वो 5,000 और मैं हर महीने रेंट दे सकूं। Cost of living adjustment is given to combat the effects of inflation in an attempt to preserve the employees' buying power. जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है उतनी मेरी बाइंग पावर कम होती जाती है। अगर चीज़ों की प्राइसेस जो मैंने 100 रुपये में जितनी चीज़ें आती थी अब वो 200 रुपये में चीज़ें आती, तो मैं तो अगर 100 रुपये में आधी चीज़ें आएंगी, फिर अगर मुझे एडजस्टमेंट ना दी जाए तो मैं वो आधी चीज़ें ही ख़रीद सकूँगा, मैं ज़्यादा नहीं ख़रीद सकता। सो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू काउंटर अफेक्ट द इन्फ्लेशन, contingent pay, sometimes referred to as a merit pay, is given as an addition to the base pay based on past performance. Contingent pay means that the amount of additional compensation given to employees level of past performance. Contingent pay क्या होती है और होती, it's a one time thing कि मैंने कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, कंपनी का प्रोजेक्ट किया, उसके ऊपर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मेरे मैनेजर्स सब खुश थे और सब ने अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने मुझे एक कॉन्टिजेंट पे दे दी। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपको बेसिक पे आपकी अगर 125 है तो इस दफ़ा हम आपको एक और बेसिक पे या एक कॉन्टिजेंट पे के नाम से आपको 100,000 एक हम एक्स्ट्रा देंगे। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, similar to contingent pay, short-term incentives are allocated based on past performance. They are one-time payments and they are not known in advance. Short-term incentives. Short-term incentives होते हैं कि जी मेरी परफॉर्मेंस कंपनी में बहुत अच्छी है, कंपनी मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना चाहती है, मुझे मोटिवेट करना चाहती है,
मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, कंपनी ने मुझे एक सैलरी एक्स्ट्रा दे दी, कॉन्टिजेंट पे दे दी। कंपनी ने क्या किया कि मुझे बैंक से गाड़ी ख़रीद दी। कंपनी ने किया कि मुझे घर के लिए एक नई एलसीडी ख़रीद के गिफ्ट दे दी। कंपनी ने ये किया कि मैं एक मीटिंग अटेंड करने लाहौर जा रहा हूँ, तो कंपनी ने वहाँ पे मुझे स्टे जो है मेरी फैमिली के साथ दे दिया और टिकट भी मुझे फैमिली की दे दी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप लाहौर जा रहे हैं, तो और साथ मुझे 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी भी दे दी कि अपनी फैमिली भी ले जाओ और टेक 2 डेज़ ऑफ लाहौर में एंजॉय भी करो और ये मीटिंग भी अटेंड करके आ जाओ। इस तरह के सारे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स जो वन टाइम होते हैं, बेसिकली एक दफ़ा लाहौर भेज दिया, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया। मेरी एक मीटिंग आ गई सिंगापुर में, तो जाना तो मैंने अकेला मीटिंग अटेंड करने, लेकिन साथ मेरी फैमिली की या मेरी वाइफ की टिकट दे दी कि उन्होंने कंपनी ने 2 टिकट्स आपको दे दी, मेरी भी दे दी, मेरी वाइफ की भी दे दी। सो ये सारे इंसेंटिव्स हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए, सो दैट आई परफॉर्म मोर इन द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स. Long-term incentives attempt to influence future performance over a longer period of time. Typically, they involve stock ownership or options to buy stock at a pre-established and profitable rate. This way, employees will be personally investing in the organization's success, and this investment is expected to translate into a sustained high level of performance. Long-term incentives. शॉर्ट टर्म में तो देखा कंपनी ऐसे करती है कि मेरी बर्थडे आ गई तो उसने मुझे कंपनी ने मुझे डीवीडी प्लेयर ख़रीद दिया और इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द यूके, मैं जब वहाँ पे जॉब कर रहा था तो वहाँ पे इस तरह के शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स बहुत सारे थे। कंपनी क्योंकि इट वाज अ बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म, हर एक असाइनमेंट मिलती कंपनी के पास आती थी, कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स होती थी, वो 2 मंथ्स की 3 मंथ्स की, हर असाइनमेंट के बाद वो 2-3 दिन की छुट्टी भी कंपनी देती थी, साथ कहीं की पेरिस की टिकट दे दी या आपको कहीं और की टिकट दे दी, या आपकी बर्थडे आ गई तो बर्थडे के ऊपर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, और इस तरह से छोटे मोटे इंसेंटिव्स, और कभी ट्रेनिंग पे कहीं ले गए, कभी ट्रेनिंग पे कहीं ले गए, सो दैट एम्प्लॉयज़ भी उनका आपस में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे, दे फील हैप्पी, दे फील एसोसिएटेड टू द कंपनी, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ द बेसिक फैक्टर जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते थे। इसी तरह फिर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स थे। मैंने जब कंपनी ज्वाइन की तो मुझे डे 1 से पता था कि जी अगर मैं इस कंपनी में 2 साल जॉब कर लूँगा तो 2 साल के बाद मेरे पास ये ऑप्शन होगी कि कंपनी के जो शेयर्स हैं मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूंगा। अब कंपनी का जो शेयर है दैट वाज 19 पाउंड्स पर शेयर जो मार्केट प्राइस थी, और एम्प्लॉयज़ के लिए जो क्या प्राइस थी 11 पाउंड्स पर शेयर। 11 पाउंड का अगर मैं ख़रीदूँ तो 11 पाउंड का, मार्केट में अगर ख़रीदूँगा तो 19 पाउंड का है, तो मतलब 8 पाउंड का डिफरेंस था। अब मुझे एक स्पेशल प्राइस के ऊपर शेयर्स, अब शेयर्स का क्या मतलब है कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जितने शेयर्स कंपनी से, और वो उस तरह से उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ था कि जी मेरी सर्विस के हिसाब से कि मेरी अगर सर्विस कंपनी में 2 साल है, 2 साल के बाद मैं 100 शेयर्स ख़रीद सकता हूँ, 3 साल के बाद मैं इतने ख़रीद सकता हूँ, 4 साल के बाद मैं इतने ख़रीद सकता हूँ, और इस तरह से। तो मेरी ओनरशिप भी कंपनी में मैं हर साल जब मेरा एक कंप्लीट होता है तो मैं और शेयर्स कंपनी के ख़रीद लेता हूँ। अब कंपनी के में शेयर्स ख़रीदने का मतलब है कि मैं अपनी कंपनी जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ उसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, उस कंपनी का एक वो स्मॉलर पोर्शन ऑफ ओनरशिप भी मेरे पास है। तो आई एम मोर कंसर्न टुवर्ड्स द कंपनी कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, मैं खुद भी मेहनत करूंगा, परफॉर्म करूंगा कि भाई मेरी परफॉर्मेंस से कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक प्राइस मेरी बढ़ेगी, मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई उसकी प्राइस बढ़ेगी, मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, मुझे डिविडेंड कंपनी अच्छा देगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी डिविडेंड अच्छा मिलेगा मुझे। सो एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ एसोसिएशन टू द कंपनी, फिर इन अ लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है इससे। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स दैट द कंपनी गिव्स टू द एम्प्लॉयज। देन कम्स टू द intangible
रिटर्न्स, हमने पहले टेंजिबल रिटर्न्स की बात की, अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल रिटर्न्स की। सबसे पहला इनकम प्रोटेक्शन। इनकम प्रोटेक्शन प्रोग्राम सर्व एज अ बैकअप टू एम्प्लॉय सैलरीज in the event that an employee is sick, disabled or no longer available to work. Other type of benefits which come under income protection are medical insurance, pension plan, savings plan. अब कंपनी क्या करती है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब मुझे पता है कि मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो जाता है, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ बीमार हो जाती है, आई विल नॉट हैव टू पैनिक कि आई कैन नॉट टेक देम टू द हॉस्पिटल बिकॉज हॉस्पिटल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज. आई कैन नॉट टेक माई फैमिली to an expensive to a good hospital for any treatment. But with the medical insurance, मुझे पता है कि मेडिकल इंश्योरेंस यूजुअली ये होती इस तरह से होती है कि सपोज कंपनी ने आप ग्रुप इंश्योरेंस कंपनीज करा लेती हैं, कंपनीज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि जी हमारे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ की आप मेडिकल इंश्योरेंस कर दें, उसमें से हर एम्प्लॉय जो है 2000, 3000 या 5000 जो है 5000 एम्प्लॉय देगा, 5000 कंपनी देती है, ठीक है। अब वो 10,000 पर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हो सकता है कि मैं सारे साल में मुझे ज़रूरत ही ना पड़े हॉस्पिटल जाने की, तो दैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, मेरी जो है मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो 10 लाख के हों या 5 लाख के हों, तो 5 लाख रुपया मेरे लिए इमीडिएटली पे करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई विल बी वेरी स्ट्रेस्ड। मैं नहीं पे कर सकता, मैं 5 लाख रुपये इकट्ठा कैसे निकालूँ, कैसे मैं हॉस्पिटल जाऊँ। लेकिन पीस ऑफ माइंड ये है कि मुझे कंपनी ने इंश्योरेंस प्रोवाइड की हुई है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी करती हैं जो कंपनीज कंट्रीब्यूट नहीं करती, सिर्फ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर भी मेरे पास एक पीस ऑफ माइंड है, फिर भी मेरे पास एक एज है कि ठीक है अगर मैं इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो जाते ही मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरी इंश्योरेंस से पैसे कट जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने वैल्यू की मेरी इंश्योरेंस उससे ऊपर मुझे देने पड़ेंगे, बाकी नहीं मुझे देने पड़ेंगे। इसी तरह पेंशन प्लान है, पेंशन प्लान के अंदर भी मैं भी देखता हूँ कि जी मैंने आफ्टर 60 ईयर्स मैंने रिटायर हो जाना है। अब मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ से मैं अपना घर चलाऊँगा, फिर भी मुझे ज़िंदा तो रहना है। व्हाट विल आई डू, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मी अ स्कीम ऑफ पेंशन, तो मैं हर महीने एक अमाउंट मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, उतनी सेम अमाउंट कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, और वो जमा होते जा रहे हैं, और फिर जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन से मुझे वो मेरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, मेरा गुजारा उससे चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सेविंग प्लान्स हैं, मैं अपने पैसे सेव कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज वर्क लाइफ फोकस। वर्क लाइफ फोकस, 3 डिफरेंट टर्म्स। हमने लास्ट सेशन में भी थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल डिस्कस की थी, बर्नआउट की जब हमने बात की थी। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, सारा दिन आई कम टू माई ऑफिस एट 9 और 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 बजे मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, और शाम को 8 बजे तक आई एम इन द ऑफिस, यस सपोज शाम को 7 बजे तक आई एम इन द ऑफिस। अब 7 बजे व्हेन आई लीव माई ऑफिस आई गेट वेरी टायर्ड, I do not have that stamina or that courage to go to any gym or playing field. मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या मैं स्विमिंग क्लब नहीं जा सकता, या मैं और कुछ खेलने कहीं नहीं जा सकता। और उसकी वजह से क्योंकि मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही, मैं ऑफिस में सारा दिन बैठा रहता हूँ और सारा दिन काम करता रहता हूँ, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होता जा रहा हूँ, और उसकी वजह से मैं बर्न आउट हो रहा हूँ। सो कंपनीज क्या कर रही हैं, थ्रू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट डू, दे बैलेंस योर वर्क लाइफ फोकस। हाउ डू दे डू इट?
Benefits related to work-life focus include programs that help employees achieve a better balance between work and non-work activities. Companies क्या करती हैं कि after some time you had a very tough session, तो आपका सेशन के बाद क्या करेंगी, उसके बाद आपको 1 महीने की छुट्टी दे देंगी, या आपको कहेंगी कि आप अपनी फैमिली को लेके 10 डेज़ के लिए सवात चले जाएं, वहाँ जाके आप स्पेंड सम टाइम देयर और आराम से रिलैक्स करें, वापस आ जाएं, देन विल स्टार्ट अ न्यू असाइनमेंट. व्हेन आई वाज वर्किंग इन द यूके, वहाँ पे हर असाइनमेंट के बाद मस्ट होता था वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग कराते थे. ट्रेनिंग होती थी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और उसके बाद फीडबैक लेते थे कि, और उसके बाद फिर आपको 3 डेज़ देते थे टू गो टू योर होम, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, और नेक्स्ट वीक पूरा एक वीक बीच में के बाद अगली असाइनमेंट शुरू करते थे. ऐसा नहीं होता था कि एक असाइनमेंट कंप्लीट की तो अगले दिन से नेक्स्ट असाइनमेंट. मैंडेटरी किया हुआ था कंपनी ने कि हर असाइनमेंट फिनिश होने के बाद 2 to 3 डेज़ की ट्रेनिंग होगी, और फिर अनदर 3 डेज़ जो हैं वो आपको छुट्टी मिलेगी टू गो टू योर होम, एंड देन कम बैक फ्रेश एंड स्टार्ट द न्यू असाइनमेंट. सो इसी तरह, और फिर कंपनी आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है. आप परेशान हैं किसी बात से, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है. इसके अलावा अभी एक नया कल्चर पाकिस्तान में भी जो शुरू हो गया है वो ये है कि इस्लामाबाद में आई नो 2 or 3 ऑफ द कंपनीज, इसे लाइकवाइज कराची में एंग्रो कर रहा है, PNG कर रहा है. वहाँ पे उन्होंने एक फ्रंट डेस्क बना दिया कंपनी में. अब जैसे सुबह आई कम टू द ऑफिस, और सुबह में जब घर से निकलते वक्त माई वाइफ विल टेल मी कि जी घर की फलानी टैप ख़राब हुई है, घर की बेल नहीं बज रही, केबल में ये प्रॉब्लम है, और आई डू नॉट हैव टाइम फॉर दीज थिंग्स. आई विल हैव टू गेट टू माई ऑफिस एंड देन वर्क ऑल द डे, और शाम को मैं आऊँगा. शाम को व्हेन आई कम बैक टू माई होम, आई एम वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट go to the market and bring somebody to fix the bell, but the bell is very important as well. So what the companies do, front desk बना दिया. when I come to my office I tell them कि जी मेरे घर की बेल ख़राब है. there is a manager, वो मेरी कंप्लेंट नोट कर लेता है, और उसके पास 4-5 लोग होते हैं, वो किसी को अरेंज करता है, मेरे घर भेजता है, मेरी बेल ठीक करा देता है. so this is an incentive that the company is giving me. company is giving me some time to relax my mind. I am very relaxed कि मुझे मार्केट जाके बंदा ढूंढ के ला के बेल नहीं ठीक करानी, वो मैं सुबह जाके बताऊंगा, वो बेल ठीक कर जाएंगे. इसी तरह ऑन कैंपस या जो है ऑन साइट ऑफिस के अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. स्विमिंग पूल है. मैं इन द लंच टाइम, लंच की 2 hours की ब्रेक है, मैं लंच करता हूँ, या लंच से पहले इन ऑर्डर टू रिलैक्स वहाँ पे मसाज चेयर्स हैं, मैं जाके लेट जाता हूँ थोड़ी देर. ऑफिस में मैं थोड़ी देर आई टेक सम टाइम ऑफ, या मैं स्विमिंग कर लेता हूँ. शाम को 5 बजे मैं क्या करता हूँ ऑफिस से, या 6 बजे मैं निकलने से पहले आई गो टू द स्विमिंग पूल, वहाँ स्विम करके देन आई गो होम. या फिर मैं वहाँ पे जिम है, या फिर वहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ टेबल टेनिस है, या बैडमिंटन है, मैं वो खेलता हूँ अपने कोलीग के साथ. उनसे मेरी रिलेशनशिप भी बढ़ता है, और इस तरह से मैं रिलैक्स भी करता हूँ. देन आई गो होम, क्योंकि घर में पहुँच के ऑफिस से घर की मेरी 1 घंटे की ड्राइव है. 1 घंटे बाद व्हेन आई रीच होम आई एम वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ गोइंग एनीवेयर. सो दिस इज हाउ. और फिर एक नया कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सी स्केड्यूल्स का, या फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स इन्हें कहते हैं. उसमें क्या होता है कि जी मैं सुबह, क्योंकि मैंने ऑफिस आना है, और रास्ते में मैंने अपने जो है चाइल्ड है, सन है, आई हैव टू ड्रॉप हिम ऑफ एट द स्कूल एंड देन कम टू द ऑफिस. और आई कैन नॉट रीच माई ऑफिस बिफोर 9:30. अब अगर ऑफिस मेरा 9 o'clock लगता है, मैं डेली हाफ एन आवर लेट आऊँगा, और डेली आके आई विल बी टेलिंग देम मैं आज लेट हो गया, या मैं रश करूँगा, या मैं भागूंगा, मैं किस तरह से 9 बजे पहुँचूँ, मैंने उसको भी ड्रॉप करना है, उसको भी वहाँ से, और रास्ता इतना लंबा है सारा. सो द कंपनी गिव्स यू फ्लेक्सी स्केड्यूल्स कि ठीक है मैं 9:30 नहीं आ सकता, या मैं 9 o'clock नहीं आ सकता, कम एट 10 o'clock, मैं 1 घंटा लेट आऊँ डेली. में वो कहते हैं ठीक है आप 1 घंटा डेली ऑफिस लेट आया करें. 1 घंटा आपने 6 बजे छुट्टी करनी है, आप 7 बजे छुट्टी कर लें.
या मैं कहता हूँ मैं 11 बजे से पहले ऑफिस नहीं आ सकता, मैं 11 बजे ऑफिस आऊँगा, कहते हैं ठीक है आप 11 बजे ऑफिस आएँ, रात को 8 बजे घर चले जाओ, फाइन. सो दीज आर ऑल intangible returns. They help you, they are mandatory in order to balance your work and non-work activities. Then comes allowances. Benefits include allowances covering housing and transportation. आपको घर का रेंट दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे देते हैं. Examples: employer provide a house or reimburses the rent. यूजुअली कंपनीज ने अपने घर बिल्ड किए होते हैं. फैक्ट्रीज में तो होता है कि वहाँ पे उनका रेजिडेंशियल एरिया होता है, आपको घर दे देते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. इस्लामाबाद में इधर उधर कंपनीज जहाँ ऑफिस हैं वो आपको हाउस रेंट दे देते हैं, कहते हैं जी आप ये रेंट आपकी सीलिंग है, इसमें जो मर्जी घर ले लें आप. देन कार, आपको या तो कंपनी परचेज करके कार दे देती है और आपको कहती है कि ठीक है जी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, या कहती है कि आप अपनी कार यूज़ करें, हम आपको कार का फ्यूल दे देंगे 500 लीटर, या यूजुअली कंपनीज 500 या 700 लीटर्स दे देती है कि जी 700 लीटर फ्यूल है, आप बेशक पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें या कंपनी यूज़ के लिए यूज़ करें, हर महीने 700 लीटर हम आपको दे दिया करेंगे. Then relational returns. Relational returns are intangible in nature. They include recognition and status, employment security, challenging work, opportunities to learn, opportunities to form personal relationships at work. जैसे भी हम डिस्कस करें intangible return, फिर क्या है? Recognition and status. Recognition and status में क्या होता है? पहले भी हमने डिस्कस किया था. रिकग्निशन एंड स्टेटस होता है कि जी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा स्टेटस भी इंक्रीज कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मेरे काम को. फिर अगर आप मुझे कहते हैं कि आप काम बहुत अच्छा करें, वी रियली लाइक योर वर्क, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वर्क, तो मुझे एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी है कि भाई मेरे बॉस, मेरे डायरेक्टर्स, दे आर हैप्पी विद माई वर्क, so I'm good at this company. ऐसा नहीं है कि वो मुझसे नाराज़ हैं या मुझसे गुस्से हैं, कल को आके कहेंगे भाई तुमने काम ठीक नहीं किया, चलो हम आपको टर्मिनेट करते हैं समथिंग. फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लर्निंग की, कंपनी में हैं नहीं है, ट्रेनिंग्स कराते हैं ऑन जॉब, ऑफ साइट, ऑन साइट, या आपको कहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए. देन रिलेशनशिप्स, This is a very new phenomenon. इसकी एक एग्जांपल सन यू है. सन माइक्रो सिस्टम्स, इट्स अ कंपनी जिन्होंने एक सन यू एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया हुआ है, जिस तरह हम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं और बहुत सारे हैं. तो इन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने पोर्टल जहाँ पे कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते हैं ऑफ एंड ऑन, एंड दे इनकरेज कि वो आपस में रिलेशनशिप्स भी डेवलप करें एक दूसरे के साथ, और मिलें जुलें, डेली एक दूसरे से बातचीत करें, हेलो हाय करें, उसके ऊपर सारे एम्प्लॉयज़ आएँ, सन यू के ऊपर हेलो हाय करें. इनके जो सन माइक्रो सिस्टम्स हैं, ये दिस कंपनी इज़ प्रेजेंट इन 87 कंट्रीज़. तो उन्होंने वो सन यू पूरे 87 कंट्रीज़ में हर एम्प्लॉय के पास अवेलेबल है, एंड दे इनकरेज के सारे आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से सन यू पे मिलें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को अपने जो है बताएं कि व्हाट आर देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कौन कौन से काम वो क्या कर रहे हैं, और कौन से चैलेंजेस हैं उनको किसी प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं. उसके अलावा अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और अपने रिलेशनशिप्स एनहांस करें. Now coming to aims and roles of performance management system. What is the aim? Why do we implement, why do we develop a performance management system? This is important. सबसे पहला तो उसका पर्पस जो है स्ट्रेटेजिक है. The second administrative, informational, developmental, organizational, maintenance and documentational. Basically ये 6 purposes हैं, main 6 purposes हैं of implementing or developing a performance management system.
Now let's discuss them in detail. Strategic purpose of performance management system क्या? Performance management system help top management achieve strategic business objectives. By linking organizational goals with the individual goals, the performance management system reinforces behaviors consistent with the attainment of organizational goals. Strategic purpose ये है कि जी performance management system क्या करता है? कंपनी के गोल्स और इंडिविजुअल के गोल्स को आपस में अलाइन कर देता है. कंपनी के गोल्स को कैस्केड डाउन करता है टू बिट्स में पियर्स कर देता है. कंपनी के गोल को किसमें? इंडिविजुअल के गोल्स में कैसा अलाइन कर देता है, मिक्स कर देता है, सो दैट इंडिविजुअल सही डायरेक्शन में काम करे ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके. इसकी एक हम एग्जाम्पल केस स्टडी देख लेते हैं. Sears uses performance management to focus on strategic business priorities. Sears basically it's a large corporation, very large. It's a departmental store in the USA. New leadership at Sears is utilizing performance management practice and principles to align human resources with business strategy. New leadership जो है वो performance management system के थ्रू क्या करना चाह रही है? ह्यूमन रिसोर्सेज और बिजनेस स्ट्रैटेजी को अलाइन करना चाह रही है. हेडक्वार्टर्ड इन हॉफमैन एस्टेट्स, इलिनॉय, Sears Holding Corporation is the third largest broadline retailer in the United States, with approximately $55 billion in annual revenues and with approximately 3,900 retail stores in the United States and Canada. Third largest departmental store है, retailer है, और 3,900 retail stores हैं. Sears Holdings is the leading home appliance retailer as well as leader in tools, lawn and garden products, home electronics and automotive repair and maintenance. The company is the nation's largest provider of home services with more than 13 million service calls made annually. Home services भी provide करते हैं, electronics में ज़्यादा deal करते हैं. Following the merger with Kmart Corporation and Sears, Roebuck and Company, Kmart, Sears and Roebuck ये सारे क्या डिफरेंट पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, तो इन बाद में इन्होंने मर्ज कर लिया आपस में. एल्विन बिन लुइस जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है Sears का, was promoted to chief executive and was tasked with a strategic culture change initiative in hopes of reinvigorating the struggling retail company. उसको क्या टास्क दिया गया? स्ट्रेटेजिक कल्चरल चेंज का. A strategic objective is to move from an inward focus to a customer service approach. A second key objective is to bring about an entrepreneurial spirit where store managers strive for financial literacy and are challenged to identify opportunities for greater profits. चीफ एग्जीक्यूटिव नया बना तो चीफ एग्जीक्यूटिव को यह टास्क दिया गया जी कि स्ट्रेटेजिक कल्चरल चेंज लाएं. पहले ये सिर्फ रिटेल स्टोर था, इन्हें कहा गया कि आप सर्विस कस्टमर सर्विसेज में भी आ जाएं, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करें. और उसके अंदर इन्होंने फिर डिफरेंट एक्शंस लिए, वो एक्शंस यहाँ पर डिस्कस हुए हैं. Several aspects of performance management systems are being utilized to achieve these strategic objectives. For example, employees' duties and objectives are being revised so that employees will spend less time in backrooms and more time interacting with the customers to facilitate purchase and understand customer needs. इन्होंने क्या किया, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप रादर देन बैक ऑफिस में पीछे बैठने के बजाय आप ऑन फ्लोर रहें, कस्टमर्स चीज़ें परचेज करें, आप उनके साथ मिलें, गपशप लगाएं, उनको बताएं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. इस तरह आपको उनकी नीड्स और वांट्स का भी पता चलेगा और आपकी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द स्टोर. In addition, leadership communication with employees and face-to-face interaction is being encouraged. Lewis spent 3 days per week in store with employees and frequently quizzes manager on their knowledge. जो Lewis जो इनका CEO है वो 3 दिन हफ्ते के किसी न किसी स्टोर में गुजारता है और वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे सवालात क्विजेस पूछता रहता है अबाउट द कंपनी. और किस तरह का सवाल पूछता है, सच एज अबाउट प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर अ गिवन डिपार्टमेंट, कि हर डिपार्टमेंट का इस डिपार्टमेंट का क्या प्रॉफिट मार्जिन है. द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट एम्प्लॉयज रिसीव इज टू बी रेफर टू एज कमर्शियल और समवन हु कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिट्स.
और लोगों को encourage करता है कि आप opportunities, हर employee अपनी feedback दे, opportunities ढूंढे कि कैसे कंपनी को और profitable बनाया जा सकता है. CS headquarters employees are also required to spend a day working in store. और जो हेडक्वार्टर वाले के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो एक दिन महीने का किसी न किसी स्टोर में गुजारें, which many had never done, जो कि लोगों ने पहले कभी नहीं किया था. Executive management has identified 500 employees, और एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में ने 500 एम्प्लॉयज़ ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि वो समझते हैं कि पोटेंशियल लीडर्स हैं सीयर्स कंपनी के, और फिर उनको उसी तरह की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं सो दैट उनको कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक चेंजेस ला सकें वो लीडर्स सीयर्स के तमाम स्टोर्स में. In sum, the performance management system at Sears is used as a strategic tool to change Sears culture because senior management views encouraging key desired behavior as critical to the company's success in marketplace. Sears कंपनी ये समझती है कि वो अगर एक स्ट्रेटेजिक कल्चरल चेंज ला सकेगी अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में तो वो कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल होगी. कैसे? थ्रू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज़ में कल्चरल चेंज ला रही कि जी हम सिर्फ एक डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स ही सिर्फ नहीं बेचते, हम इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर आपने एसी ख़रीदा, हम आपके घर जाके एसी को इंस्टॉल भी करके आएंगे, एसी ख़राब होगा उसको ठीक भी करेंगे, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास टोटल सोल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू बी. सो ये नया गोल इन्होंने आइडेंटिफाई किया और थ्रू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स में इनकलकेट किया कि अब हमारी कंपनी ये बनना चाहती है, इस तरफ मूव कर. दिस इज द डायरेक्शन. देन that was the first purpose of the performance management system, the strategic one. Now coming to the second one, administrative purpose क्या है? PM system also functions to furnish valid and useful information for making administrative decisions about employees. Administrative और कौन से हैं? Informational decisions about the employees क्या हो सकते हैं? डिसीजन सैलरी एडजस्टमेंट के, किसी की सैलरी बढ़ानी है, कम करनी है, प्रमोशन करनी है, नहीं करनी है, एम्प्लॉय रिटेंशन या टर्मिनेट करना है, उसको रखना है, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस, उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, अवार्ड देना है, उसको लोगों को बनाना है, सर्टिफिकेट देना है, या मैनेजर ऑफिस के अंदर वो एक यूजुअली ये करते हैं कि वो एक नाम लिख के और दिस इज़ द स्टार ऑफ दिस मंथ वो लगा देते हैं कि जी ये एम्प्लॉय स्टार ऑफ दिस मंथ, इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही इस मंथ में, और पुअर परफॉर्मेंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कोच करते हैं. तो देन कमिंग टू इंफॉर्मेशनल पर्पस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस. इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस. First information is relayed to the employee about the performance and specific area which they need to improve. पहले एम्प्लॉय को फीडबैक दी जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस इस साल में ऐसी थी और ये एरिया जिसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सेकेंड, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरवाइजर एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस. पहले तो उसे बताया जाता है कि जी ये आपकी परफॉर्मेंस रही, ये इन एरियाज पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. फिर उसको बताते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, कौन कौन से एरियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको. देन द डेवलपमेंटल पर्पस, मैनेजर्स कोच एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए डे टू डे बेसिस पे उनको बताते रहते हैं, मैनेजर्स उनकी डेवलपमेंट करते रहते हैं कि भाई आप ये काम ठीक कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, इसको ऐसे कर लो, इसका ये एक और तरीका है, ये फ्रेमवर्क ज़्यादा इफेक्टिव है. द फीडबैक ऑल्सो अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड कॉजेज ऑफ परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज. ये भी आइडेंटिफाई इसके थ्रू होती हैं. देन कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस पर्पस, performance management system also serves the purpose of workforce planning. This is very important. Workforce planning comprises a set of systems that allows organization to anticipate and respond to needs emerging within and outside the organization, to determine priorities and to allocate human resources where they can do the most good.
अब सपोज वर्कफोर्स प्लानिंग में कैसे करता हूँ, हम डिपार्टमेंटल स्टोर से कंपनी से बाहर आते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी की दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। फैकल्टी मेंबर्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, यूजुअली एक डिपार्टमेंट में 100 फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। अब 100 फैकल्टी मेंबर्स हैं, सब के सब बिज़ी हैं किस में, अपनी टीचिंग में, अपनी रिसर्च में, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या कोई एक्स्ट्रा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो उनको दी हुई है। नाउ एन इवेंट इज़ कमिंग अप, यूनिवर्सिटी एक फॉर दैट मैटर जो यूजुअली होता है कॉन्वोकेशन का इवेंट आ रहा है। अब कॉन्वोकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, सिक्योरिटी के लिए सुपरवाइजर्स चाहिए हैं। अब तो वो क्या करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स की ड्यूटीज़ लगाते हैं कि जी आप ने फलाने दिन कॉन्वोकेशन और उसकी रिहर्सल के ऊपर सिक्योरिटी इंचार्ज आप होंगे, आप इन लोगों का ख्याल ऐसे रखेंगे, ये रास्ते आप ये करेंगे, आप अपना सिक्योरिटी प्लान फलाने को, सो दैट हम वो प्लान कर लेते हैं, अपनी वर्क फोर्स को उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि कौन अब सिक्योरिटी में अच्छा है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, कौन फूड के लिए अच्छा है। तो उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि जी हमारे पास 120 फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनसे हम ये काम ले सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। So this is what a workforce planning is. Documentational purpose of performance management system. Performance management system allows organization to collect useful information that can be used for several documentation and administrative decision purposes. This information can be useful in case of litigation. Documentation of feedback, मेरी हर साल performance appraisal होता है, हर सेमेस्टर के बाद होता है, कंपनीज में हर साल होता है, उनकी परफॉर्मेंस जज होती है, मेजर होती है, वैल्यूएट होती है। अब सपोज़ और वो हमें उससे पता चलता है कौन सा एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है, उसकी क्या परफॉर्मेंस पिछले साल थी, इस साल क्या थी, कंपैरिजन होते हैं और सारा। अब सपोज़ एक तो ये हमारे पास डाटा सेट एक इकट्ठा हो जाता है कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने पिछले साल ऐसा परफॉर्म किया था, इस साल ऐसा परफॉर्म किया था, ये डेफिशिएंसीज हैं, ये उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये होता है कि एम्प्लॉय लिटिगेशन में चला जाता, कोर्ट में चला जाता और जाके केस करता है कि जी मेरी परफॉर्मेंस जो है मुझे इन्होंने, जैसे मैंने आपके एक केस आपके साथ डिस्कस किया था, एक यूनिवर्सिटी में रियल केस हुआ था जिसके अंदर उनकी अप्रेजल ठीक नहीं किया गया था, तो लोगों को वार्निंग लेटर्स इशू हुए और वो लोग कोर्ट में चले गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब हाई कोर्ट अगर बुलाती है इन केस इस केस के अंदर कि जी यूनिवर्सिटी को आके कि आएँ आप आके एक्सप्लेन करें आपके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट आई है, तो यूनिवर्सिटी के पास अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी तो यूनिवर्सिटी जाके कह सकेगी कि जी देखें ये तो इसकी पिछले साल ये कंप्लेंट्स थी इस बंदे की, इसने इस सेमेस्टर में इसने ये कोर्स पढ़ाया, स्टूडेंट्स के ये था और उसने ये कंप्लेंट थी। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगा, अगर वो प्रॉपर उसकी अप्रेजल हुआ ही नहीं होगा, तो कोर्ट में तो जाके यूनिवर्सिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। सो दैट इज़ वाई कि डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़, one of the purpose that the performance management system serves is the documentation, कि वो कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर देता। Now coming to the characteristics of an ideal performance management system, ये बड़े जर्नल से कॉमन सेंस की बातें हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एक आइडियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या चीज़ होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए कि जी टॉप डाउन जो कंपनी के गोल हैं वही इंडिविजुअल के गोल्स अलाइंड होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। थॉरोनेस होनी चाहिए कि जी जो सिस्टम है वो थॉरली इम्प्लीमेंटेड हो, हर कंपोनेंट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो। प्रैक्टिकलिटी हो कि जितने एक्शंस डिसीजन लिए जाएं उनके प्रैक्टिकल इन नेचर हों। मीनिंगफुलनेस, हर डिसीजन जो है या उसका बैक हिस्ट्री हो, मीनिंगफुल डिसीजन हो। स्पेसिफिक डिसीजंस या स्पेसिफिक एक्शंस या स्पेसिफिक कोचिंग प्रोवाइड हो। आइडेंटिफिकेशन, इफेक्टिव इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकें। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिलायबल हो। रिलायबल होने का मतलब है स्टेबल हो, कि इस एक साल तो आपने उसको बड़ा अच्छी तरीके से चलाया, अगले साल आपने उसको फोकस ही नहीं किया, वो आपका इनएफिशिएंट हो गया,
और पुअरली इम्प्लीमेंटेशन पुअर हो गई और आपका सारा सिस्टम हर चीज़ बेड़ा गर्क हो जाएगा वहाँ पर. सो दीज आर द जर्नल मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. फिर और वैलिडिटी सिस्टम की, एक्सेप्टेबिलिटी, फेयरनेस का, सिस्टम में फेयरनेस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, फीडबैक एम्प्लॉयज़ भी दे सकें, मैनेजर सबकी फीडबैक आप डिस्कशंस होनी चाहिए, करेक्टेबिलिटी कि अगर सिस्टम में कहीं कोई फ्लॉ हो तो उसको करेक्ट हो सके, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, तमाम पॉलिसीज़ तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए एक जैसी होनी चाहिए, एथनिसिटी, there should be no gender discrimination या discrimination on the basis of geographical location या इस तरह से जो है वो नहीं होनी चाहिए. Now coming to the last part of this session, this lecture, हमने यहाँ पे chapter number 1 conclude कर रहे हैं. chapter 1 complete कर लिया है. chapter 1 was about what is performance management system, performance management क्या होती है, performance appraisal क्या होता है, हम क्यों करते हैं, इसके characteristics क्या हैं, ideal performance management system के, फिर हमने advantages, disadvantages, poorly implemented systems, ये सारे हमने चीज़ें discuss की. Now we'll discuss a case study, performance management at Network Solutions Incorporation. Network Solutions Incorporation is a worldwide leader. मैंने पहले भी एक और चीज़ में क्लियर करता जाऊँ, सेशन में हमने ये मैंने आपको ये बात कही थी कि बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें मोस्टली थ्योरीज हैं, थ्योरेटिकल इन नेचर हैं सारे ये कोर्स जो है, तो sometimes it becomes boring and dry, but I'll try to I'll try to make you comfortable, grab your attention, make you comfortable. I'll try कि आप अपनी जो है focus जो है वो continue कर सकें. For that I'll be including a lot of case studies. तो ये सारी case studies जो हैं, these are real case scenarios. दुनिया में जो के केसेस हो चुके हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे, उसके कंपोनेंट्स पे, सो दैट यू कैन हैव अ रियल इनसाइट कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या कुछ होता है, कैसे होता है. और इससे एक और चीज़ जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि यू कैन रेप्लिकेट दीज केस स्टडीज़ इन योर रियल लाइफ. आप जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो यू कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज केस स्टडीज़. Network Solution Incorporation is a worldwide leader in hardware, software and services essential to computer networking. Until recently, Network Systems Incorporation used more than 50 different systems to measure performance within the company. Many employees did not receive a review. Fewer than 5% of employees received the lowest category of rating, and there was no recognition program in place to reward high achievers. रिकॉग्निशन प्रोग्राम कोई नहीं था. 5% से कम जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी रेटिंग बहुत कम थी. फिर 50 डिफरेंट सिस्टम्स थे मेजर परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ को फीडबैक कोई नहीं दी जाती थी. ओवरऑल इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स वाज नॉट बीइंग एड्रेस्ड. परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा था. एंड टफ प्रेशर फ्रॉम कंपैटिटर्स वाज इंक्रीजिंग, और कंपैटिटर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था मार्केट में. एंड द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस इनफेक्टिवली. अब इस तरह की सिचुएशन हो तो लोग टर्न अराउंड शुरू हो जाता है, लोग टर्न ओवर शुरू हो जाता है, लोग छोड़ के जाना शुरू कर दूसरी कंपनीज में चले जाएंगे. उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ आपके दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, आप कंपनी कैसे चलाएंगे. तो बहुत ह्यूज प्रेशर्स डेवलप हो जाते हैं. इन एडिशन, quality initiatives were driving change in several areas of the business, and Network Solution decided that these initiatives should also apply to people quality. Finally, the Network Solution wanted to improve its ability to meet its organizational goal and realized that one way of doing this would be to ensure that they were linked to employees' goals. आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ का और कंपनी के गोल्स जो हैं वो अलाइंड होने चाहिए.
Given this situation, in 2001, Network Solutions CEO announced that he wanted to implement a forced distribution performance management system in which a set percentage of employees were classified in each of several categories. For example, a rating of 1 to top 20% of performers. उन्होंने कहा जी हम एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, CEO ने अनाउंस किया और उसने कहा कि जी हम रेटिंग सिस्टम होगा और उसके अंदर हम 20% जो टॉप फर्स्ट 20% उनको 1 रेटिंग देंगे, उसके बाद 2 देंगे जो उससे बाकी के 70% है, एंड 3 देंगे जो आखिरी 10% रह जाएंगे. A global cross-divisional HR team was put in place to design and implement the new system. एक नया सिस्टम बनाने के लिए HR टीम को उन्होंने कहा. The first task for the design team was to build a business case of the new system by showing that if the organization strategy was carried down to the team contributions and team contributions were translated into individual goals, then business goals would be met. कहा जी सबसे पहला स्टेप HR टीम ने कहा कि जी ये हो सकता है हम एक केस स्टडी डेवलप करें कंपनी की कि हमने करना कैसे है. उसके लिए उन्होंने कहा कि जी जो कंट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी है, वो टीम कंट्रीब्यूशन के अंदर ट्रांसलेट होनी चाहिए. टीम कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए इंडिविजुअल गोल में होनी चाहिए, तो ही हम अपनी कंपनी के गोल्स को मीट कर सकेंगे. Initially, the program was rolled out as a year-round people management system that would raise the bar on performance management at Network Solutions by aligning individual performance objectives with organizational goals by focusing on the development of all employees. शुरू में तो उन्होंने सोचा एक साल एक के अंदर ये हम और कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे सिस्टम, और उन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे जो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट है सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम अचीव कर सकें. The desired outcomes of the new system included raising the performance level of all employees, identifying and retaining top talent, and identifying low performance and improving their performance. उन्होंने कहा जी जो हम आउटकम जो हम चाहते हैं सिस्टम से, वो नए सिस्टम से वो ये है कि जी परफॉर्मेंस ऑफ सारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पता चले, आइडेंटिफाई कर सकें कि जी कौन से टॉप टैलेंट है, कौन कौन से लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लो परफॉर्मर्स कौन से हैं और उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए. Network Solutions also wanted the performance expectations of all employees to be clear. और वो चाहते थे कि तमाम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बिल्कुल क्लियर, शफाफ, फेयर हो, लोगों को भी पता हो. Before implementing the program, the design team received the support of senior leadership by communicating that the performance management system was future of Network Solutions and by encouraging all senior leaders to ensure that those reporting directly to them understood the process and also accepted it. उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि सीनियर लीडरशिप जो थी कंपनी को उसको इन्वॉल्व किया और उन्होंने बताया कि जी कंपनी को अगर रिटेन करना, सस्टेन करना, उसका फ्यूचर ही जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है. इसको प्रॉपरली कर लें, अपने इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे. In addition, they encourage senior leaders to use the system with all of their direct subordinates and to demand and utilize output from the new system. उन्होंने कहा जी कि उसके लिए ज़रूरी उन्होंने ये किया कि जितनी सीनियर मैनेजमेंट है वो अपने जिनके डायरेक्टली उनको जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करें और उन पे इम्प्लीमेंट करें और उनसे इस पे काम लें. Next, the design team encouraged the senior leaders to stop the development and use of any other performance management system, explained the need of standardization of performance management across all divisions. उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बाकी जितने systems performance management के सारे बंद कर दें, सारे standardization एक system पे आ जाएं, सब departments. Finally, the team asked senior leaders to promote the new program by involving employees in training of talent management and by assessing any needs in their divisions that would be addressed by the new system. और उसके बाद उन्होंने कहा सीनियर लीडर्स को कि जी आप प्रमोट करें अपने न्यू प्रोग्राम इस सिस्टम को, और उन्होंने कहा जी अपने ट्रेनिंग जो है इन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग्स कराएं और असेस करें अपने डिवीजन को इस सिस्टम के ऊपर. The Network Solutions Global Performance Management Cycle consisted of the following process. ये वो process है जो कि इन्होंने adopt किया. Goal cascading and team building. सबसे पहले उन्होंने goal cascade किया, individual तक उन्होंने बनाया कि जी अगर कंपनी का गोल ये है, strategy ये होनी चाहिए, तो ये cascade करके individual के goals ये होने चाहिए. Alignment. Performance कैसे plan करनी है, performance की उन्होंने सारी planning की. फिर developmental planning उन्होंने की.
ongoing discussions and updates between managers and employees. उन्होंने openly इस सिस्टम को डिबेटेबल बनाया कि जी इसको आप डिबेट करें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने हायर अप्स के साथ और अपने सीनियर लीडर्स के साथ, और इसके फ्लॉज और सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करें, इसको करेक्ट करें सिस्टम को. उसके बाद एनुअल परफॉर्मेंस समरी बेस्ड उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया. Training resources were made available on network solutions intranet for managers and individual contributors, including access to all necessary forms. उन्होंने कहा कि जितनी ट्रेनिंग नीड्स थी उन्होंने ऑनलाइन कर दी, सबको एक्सेस दे दी. उन्होंने कहा जी जिसको ट्रेनिंग, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता, आप जाएं और ट्यूटोरियल पढ़ा उसको देखें और समझें और डिस्कस करें लोगों के साथ. In addition to the training available on the internet, 1 to 2 hour conference calls took place before each phase of program was begun. हर फेज से पहले 1 से 2 घंटे की उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल्स की तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके, ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स सेम लाइन पे आ जाएं. So this is how network solutions ने अपनी global performance increase की. This is a real case study. पहले 50 सिस्टम्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट थे, डिफरेंट सिस्टम्स थे, हर डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से अपनी तरह से असेसमेंट करता था, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता था. फिर उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने कहा कि जी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको कैसे इंडिविजुअल की, कंपनी की, सीनियर्स और ये फीडबैक सिस्टम कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, क्या सिस्टम डिज़ाइन करें, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें. उन्होंने फिर एक्शंस लिए और इवेंचुअली दे बिकम सक्सेसफुल. Today, part of the training associated with the performance management system revolves around the idea that the developmental planning phase of the system is the joint year-round responsibility of managers and employees. कि developmental phase जो है जिसमें trainings और बाकी needs आ जाती हैं, coaching आ जाती है, ये पूरे साल का काम है, सारा साल ये चलता रहता. Managers are responsible for scheduling meeting, guiding employees and preparing for meetings. मैनेजर्स जो हैं वो तमाम रिस्पॉन्सिबल हैं मीटिंग्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स के साथ कंडक्ट करने के लिए और उनके स्केड्यूल्स बनाने के लिए. एंड फाइनलाइजिंग ऑल डेवलपमेंट प्लान्स, उनके साथ उनकी नीड्स आइडेंटिफाई करके कि जी इस एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग चाहिए, इसको ये चाहिए, और अपने डेवलपमेंटल प्लान डेवलप करें हर साल के. Individual contributors are responsible for documenting the developmental plans. Both managers and employees are responsible for preparing for the meeting, filing out the developmental planning preparation form, attending the meeting. तो meeting attend करें, उनके forms fill करें, developmental वो training schedules बनाएं. With force distribution systems, there is a set number of employees that have to fall into set rating classifications. As noted in the network solution system, employees are given a rating of 1, 2 or 3. जो हमने पहले डिस्कस किया था 1, 2 और 3, उन्होंने कहा रेटिंग मिलेगी. Individual ratings are determined by the execution of annual objectives and job requirements as well as by comparison rating of other at a similar level. उन्होंने कहा कि जी रेटिंग आपको मिलेगी कैसे, इंडिविजुअल आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी के गोल के को आपकी गोल के पे आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, प्लस आपके सेम लेवल के ऊपर जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कंपैरेटिवली. ये कंपैरेटिव इन्होंने करके उन्होंने कहा कि इस 3 चीज़ों पे बेस करके हम आपकी रेटिंग करेंगे. Employees receiving a 3, the lowest rating, जिनकी 3 सबसे कम रेटिंग आई, have a specific time period to improve their performance. उनको एक टाइम दे दिया कि जी इतने टाइम पीरियड में आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लें. If their performance does not improve, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, then they are released from the plan, but they are not eligible for stock options or salary increases. ठीक, उन्होंने कहा जी कि हम आपको फिर कोई भी इंसेंटिव्स और ये चीज़ें, फिर आपका रिवॉर्ड सिस्टम आपके लिए ख़त्म हो जाएगा. If performance does not improve, फिर भी अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, they can take a severance package and leave the company, or they can start on a performance improvement plan. उन्होंने कहा जी कि आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान या तो स्टार्ट कर दें, या फिर आप अपनी कंपनी से एक अपना पैकेज लें और छोड़ दें कंपनी. Which has more rigorous expectations and timelines than did the original action plans. जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगर तो आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं करते तो आपको जो परफॉर्मेंस दोबारा प्लान दिया जाएगा उसकी फिर डेडलाइंस भी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत फास्ट पेस्ड होंगी. If performance does not improve after the second period, अगर फिर भी परफॉर्मेंस सेकंड पीरियड के बाद भी इंप्रूव नहीं होती, they are terminated without a severance. फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा without any given benefit के साथ. Individuals with a rating of 2 receive average to high salary increase. उनको एवरेज से हाई सैलरी इंक्रीज दी गई.
स्टॉक ऑप्शंस और अदर बोनसेस, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए गए। इंडिविजुअल्स रिसीविंग द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ 1 रिसीव द हाईएस्ट सैलरी, उनको सबसे ज़्यादा सैलरी इंक्रीज दिया गया। स्टॉक ऑप्शन बोनसेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोनसेस दिए गए। दीज इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, और उनको पे हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का स्टेटस भी दिया गया, उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया। हमने इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल रिटर्न्स में पढ़ा था कि रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, तो उनको ये भी इंटेंजिबल एसेट्स भी दिए गए। एंड गिवन एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, और उनको एक्स्ट्रा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय देयर मैनेजर्स उनको दी गई। द कंपनी ऑल्सो मेक सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू रिटेन ऑल इंडिविजुअल, और कंपनी भी फिर कोशिश करती है कि जिनकी रेटिंग 1 आई उन सबको रिटेन किया जाए, वो छोड़ के किसी और कंपनी में ना जाएं। लुकिंग टू द फ्यूचर, Network Solutions plans to continue reinforcing the needed cultural change to support force distribution ratings. HR centers of expertise of Network Solutions continue to educate employees about the system to ensure that they understand the Network Solutions still rewards good performance. और उन्होंने ये मेक श्योर किया कि कल्चरल चेंज एक आए पूरी नेटवर्क सॉल्यूशंस में फ्रॉम बॉटम लेवल टू द टॉप लेवल, और उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे उनका फोकस हो। उन्हें पता हो कि हमारी परफॉर्मेंस अगर हम बेहतर करेंगे तो हमें रिवॉर्ड भी बेहतर मिलेगा, और थ्रू दिस थिंग उन्होंने ये मेक श्योर किया कि जी गुड परफॉर्मेंस को गुड रिवॉर्ड दिया जाए। दे आर जस्ट मेजरिंग इट इन अ डिफरेंट वे दैन द पास्ट। उन्होंने कहा जी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पहले भी होती थी, लेकिन अब इट्स अ डिफरेंट सिस्टम। There is also a plan to monitor for and correct any unproductive practices and implement correcting policies and practices। और वो साथ साथ फ्यूचर में क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनको फ्लॉ नज़र आता है जिस प्रैक्टिस में उसे वो एलिमिनेट करते जाते हैं और उसमें एक्शंस ऐड करते जाते हैं। To do this, Network Solutions plans on continued checks with all stakeholders to ensure that the performance management system is serving its intended purpose। और वो इसके लिए क्या करते हैं कि तमाम एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स को उन्होंने ऑन बोर्ड रखा हुआ है और उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, फीडबैक्स ले रहे हैं, सो दैट उनका सिस्टम बहुत ये गुड सिस्टम बन सके। सो नाउ वी हैव come to the end of this session, this lecture. Let's discuss what we have discussed in this lecture. First, we talked about the disadvantages, dangers of poorly implemented performance management systems कि क्या क्या dangers हो सकते हैं, क्या क्या disadvantages हैं अगर सही तरह implement न हुआ system। फिर हमने एक केस स्टडी देखी जिसके अंदर हमने लिटिगेशन को उसका देखा कि उसकी वजह से कंपनी को कितनी जो है वो लॉस बियर करना पड़ा। फिर वो हमने रिवॉर्ड सिस्टम्स देखे, रिवॉर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं और टेंजिबल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिटर्न्स देखे हमने, उसमें वही चीज़ें डिस्कस की। एम्स और रोल्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, रोल क्या होता है, एम्स क्या होते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने आइडियल सिस्टम की बात की कि जो आइडियल सिस्टम क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें करेक्ट, वैलिडिटी होती है, थॉरफुलनेस होती है और ये सारी चीज़ें, और करेक्टेबिलिटी होती है। इस तरह के हमने जनरल चीज़ें डिस्कस की। फिर हमने केस स्टडी, इवेंचुअली वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर 1 which was about what is performance management system। तो हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की डिज़ाइनिंग पे एक केस स्टडी देखी नेटवर्क सॉल्यूशंस की, जिसमें हमने देखा कि उसमें कोई 50 किस्म की परफॉर्मेंस अप्रेजल और सिस्टम्स चल रहे थे। तो इवेंचुअली उन्होंने कहा कि जी हमने, क्योंकि मार्केट बड़ी चैलेंजिंग हो गई है और हम और कंपेटिटर्स भी हैं, तो इन ऑर्डर टू रिटेन आवर कंपेटिटिवनेस हमें एक सिस्टम पे आना है। उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और मेक श्योर किया और फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसका देखा कि हाउ द कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन द फ्यूचर। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।